Hello everyone. Today I'm back with a new video, and I hope you all have seen my previous video in which I talked about the strategies which you can make for your CUET examination and how you can manage it with the boards and everything. So today this video will be limited to the students who want to pursue economics honors, because economics honors is also my first choice, and today I'll be telling you the whole each and everything, the book list which you require and what are the criteria which is required for pursuing economics honors. So I'll start my video, but before starting this video I'll tell you that I'll post more videos on the students who want to pursue, for the students who want to pursue geography honors or political science honors. I'll tell them the book list and what else extra they can do. So I'm going to start my video. So guys, for pursuing economics honors, firstly, from the day one, you should have the hold on economics and mathematics, because these two subjects are integral for economics honors. We can for one time we can neglect economics, because इकोनॉमिक्स यार सबको एक बार को पसंद आता है, जब हम पढ़ते हैं द ग्राफ्स एवरीथिंग एवरीवन लव्स, बट मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है. फॉर दैट आई एम हियर टू टेल यू व्हाट ट्रिक्स you can apply to get a good score in maths. So first I'll start with the very first thing, that if you want to pursue economics honors, you should have core mathematics, that is the mathematics which include calculus, differentiation, integration, and then relation functions, or everything, vectors, 3D. Core mathematics, it should be there from 11th. You should have studied core mathematics in 11th and 12th, not applied. Secondly, you should have economics as a subject which should be very strong. Your concepts should be very clear, either it be macro or micro, right? So these two concepts should be thorough, very much clear. I mean, इसमें थोड़ा सा डेविएशन नहीं चाहिए आपको. Now I'll start कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज अब देखो आप यहाँ पे समझो, इन CUET इन माइक्रो, अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करते हो तो दे टेस्ट योर माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी. दे टेस्ट 3 थिंग्स. इसमें वो माइक्रो भी टेस्ट करते हैं, एंड द माइक्रो इज़ इन 11th. सो आपको लगेगा यार हाउ विल बी रिवाइज 11th, वो तो हमने 11th में पढ़ लिया. बट देन अभी से आप लोग जो भी हो, मतलब अभी आप लोग 12th में हो, एंड बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन CUET 2024 एस्पायरेंट्स. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली दैट अभी तो आप इस पे माइक्रो पे ध्यान मत दो, बिकॉज आप जो सीरियस एस्पायरेंट्स आई होप दे हैव स्टडीड माइक्रो इन 11th एंड इन अ वेरी डिटेल वे. उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं करना है. द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, अभी आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो या डिलीट हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इन माई केस 3 चैप्टर्स आए थे, एंड बिकॉज आई हैव स्टडीड माइक्रो इन अ डिटेल, तो मेरे लिए 2 months जो आफ्टर बोर्ड्स थे ईजी था फॉर मी टू स्टडी अगैन. बट अभी इन 12th you should be very thorough with macro concepts, because macro में there is aggregate demand, there is aggregate supply, the graph, each and everything. I'll show you. मैं क्या बोलती हूँ आपसे, that this book, these 3 books, these are the गुरु मंत्रा, या फिर कह सकते हो this ग्रंथ है, ये ग्रंथ, nothing else. मतलब इन बुक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, anyhow, कैसे भी. and these books are Indian economy, the NCERT. मैंने बताया in my last video also, NCERT is the mantra. I will show you my book, how I studied. Can you see this? मेरे बुक्स में आप देख सकते होगे सारे पेजेस जितने भी हैं, these are underlined, highlighted, जैसे भी आपका जैसे भी हो. बट मेरा मानना है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को मतलब एकदम अपने अंदर इसको रखना नहीं है. यू डोंट हैव टू मग इट अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. कि अगर यार ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो. और CUET में ये स्ट्रैटेजी बनाओ. मैंने जैसे बोला यार, मैं इसको आई एम रिटेरिएटिंग इट अगैन एंड अगैन, सो प्लीज़ इसको एक पकड़ लो इस बात को मेरे. एंड आई एम सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने किया है और मेरे उसी वे से आए हैं मार्क्स, राइट. सो ये बुक, एंड देन दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लिक करते हैं. बट
अगेन जो मैंने बुक्स पढ़ी थी, दिस वॉज माई लास्ट मोमेंट. मैं इकोनॉमिक्स के लिए बोल सकती हूँ कि हाँ, एनसीईआरटी तो ग्रंथ है, वी कांट लीव इट, बट आई कैन से दैट इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हो कि मेरी बुक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है फिलहाल के लिए, बट ये बुक आई कैन से कि हाँ मैंने पढ़ी है, सो आई नो द कॉन्सेप्ट. ये आपका भी होना चाहिए. एंड फॉर माइक्रो दिस ऑल्सो संदीप गर्ग, यू शुड बी थरो विद. और जिसको इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, सो एक और बुक आती है दैट इज टी आर जैन एंड वी के औरी. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे. मतलब मैं तो कहती हूँ एक्स्ट्राज में, बट नहीं, इसमें भी कुछ मनी आप लोग पढ़ते होगे. मनी में फियाट, फिड्यूशरी, ये सब संदीप गर्ग पे इतने क्लियरिटी से नहीं दिए हैं. सो इसमें दिए हैं, यू शुड रीड दिस बुक, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक्स यू शुड बी वेरी थरो विद. एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए भी फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस यू कैन बाय संदीप गर्ग विच आई हैव. सो संदीप गर्ग आप बाय कर सकते हो एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, राइट. सो दिस वॉज माई बुक लिस्ट फॉर स्टडिंग दीज. और मैं हर बुक से पढ़ती थी. फॉर मी, मेरे लिए एक वो नहीं था कॉन्स्टेंट, बिकॉज मुझे पता था आई एम गोइंग टू परस्यू इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो मुझे हर एक कॉन्सेप्ट से थरो होना जहाँ से मुझे नॉलेज है, बिकॉज नॉलेज कहीं से मिल जाए, आप उसको गैदर कर लो, आप उसको अपने लिए कर लोगे तो इट विल बी वेरी गुड. सो मैं पढ़ती थी एंड आई विल सजेस्ट यू शुड ऑल्सो रीड दिस once again, right? So this was for economics, बहुत easily आप लोग कर लोगे. Then coming to mathematics, because maths सबको बहुत डर लगता है, but do not worry. कोई कितना भी कह दे कि आर डी शर्मा, कोई कितना भी कह दे आर एस अग्रवाल, नहीं यार, IIT नहीं करना है, JEE नहीं करना है. यहाँ पे बस these three are the गुरु मंत्र और ग्रंथ, गीता, बाइबल, जो कहना है कह लो, बट दिस इज एनफ, दिस इज एवरीथिंग. मैंने ये 3 किए, बट हाँ अब मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. आई टेल यू ऑनेस्टली, कभी लैग मत करना. ये एनसीईआरटी को पहले तो एक एक क्वेश्चन 2 बार, फिर 3 टाइम्स इसको लगाना है, कैसे भी लगाना है. और रही बात फिर उसके बाद इसके हर एक लॉन्ग शॉर्ट NCERT एग्जाम्पलर, लॉन्ग शॉर्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. और शायद मैं ये IITians के लिए भी बोल सकती हूँ कि इफ़ दे आर अप्लाइंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं यार इसमें इंटीग्रेशन की कि दे कम इन द IIT, इसमें आते हैं, NCERT एग्जाम्पलर से आते हैं. ये सफिशिएंट है, ये बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है. पता है इसमें से जितने भी क्वेश्चन है, दे आर सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स एंड यू कैन सिक्योर 100% इन मैथमेटिक्स. आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव अ सिग्नेचर एंड दिस इज द थिंग, यू विल गेट दैट. और उसके बाद CUET कम्स. CUET इज नथिंग, NCERT और कुछ नहीं, बिकॉज वहाँ पे देयर इज अ गाइडलाइन विच सेज NTA सेज जस्ट स्टिक टू द NCERT. सो दीज 3 आर द गुरु मंत्र. And if you want to pursue economics honors, be very thorough with the concept of mathematics. एक बार को सारे सब्जेक्ट भूल जाओ. मैथ्स अगर आपको आती है, you can easily get on economics honors. is the most demanding course in the Delhi University. Of course, Delhi University हर कोई बच्चा चाहता है and everyone wants to get there. But उसमें भी the most demanding course and the most rigorous course is economics honors. So this was the thing. अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार. There is nothing new and we'll get to such a मज़ा आएगा इसको पढ़ने में. एक बार तो यार वहाँ पे जाने में और इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ने में इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. पहली बात, कुछ बच्चे इसको इकोनॉमिक्स को बहुत सोचते हैं कि इट्स सच अ हाई, कैसे करेंगे यार, ग्राफ्स होते हैं. नहीं होता है, कुछ मत करो यार. एक बार बस बैठो, गो थ्रू एवरी लाइन. मतलब पता है उसको जो पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना, कहीं और नहीं है. मतलब जन्नत है. बिकॉज मुझे तो इकोनॉमिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं, पता है क्या हुआ था. आई टेल यू माई स्टोरी. 10th से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था व्हेन आई रेड द ग्लोबलाइजेशन चैप्टर. आई एम सॉरी मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं, बट आई होप यू लाइक इट, बिकॉज मेरे को सब बताना है आपको एंड आप लोगों को भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा आफ्टर लिसनिंग टू मी. सो आई गॉट दैट इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स. आई टुक इकोनॉमिक्स एज माई सब्जेक्ट एंड आई वॉज डिटरमिन्ड दैट आई विल टेक इकोनॉमिक्स ऑनर्स as my undergraduation, and then in PG I have also decided for economics only. So मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया था और मुझे सबने बोला था कि मैथ्स इज़ अ मस्ट. मतलब मैथ्स को आपको जीना है. मैथ्स में उसको आप उस एज अ वो मत सोचो कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे हम. मैथ्स में सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं,
do not think everything will be easy. You will be able to do NCERT के questions 5 times, 10 times, 100 times, जितने बार लगाने उतने बार लगा लो. फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं आता है, सेकंड टाइम में कुछ नहीं आता है, थर्ड टाइम तक आते आते आ जाता है. यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, यही मैंने किया था मैथ्स में भी. इट वॉज रियली नाइस, और इसलिए मेरे 97.75% भी आए हैं मैथ्स में. सो नथिंग टू वरी अबाउट, एंड डेफिनेटली आई अपडेट यू विद विच कॉलेज आई गॉट. और अभी हमारी काउंसलिंग भी मतलब स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी मैंने कॉलेज फिल नहीं किया है. डेफिनेटली मैं जैसे ही फिल करूँगी आई अपडेट यू विद एवरीथिंग. जो कॉलेज मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगी. एंड येस, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है. So fingers crossed, let's hope for the best. और I hope you liked my video, and I'll share more videos for political science honors के बच्चों के लिए भी who want to pursue. I'll tell them more books, कौन सी वो books ले सकते हैं. So it's not a surprise, अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ. In my next video I'll tell और जोग्राफी ऑनर्स में क्या कर सकते हैं. सो आई विल गिव अ होल डिटेल वीडियो, बट आई होप आज के वीडियो में यू लव्ड इट बिकॉज इट वॉज एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. दो आई टुक योर 11 minutes but I need to tell you everything. So thank you and bye bye.